और उसको पहले ऐसे बोल लीजिए। पकड़ो इसे, इस तरफ से। हाँ, तीनों ये 3-4 दिनों का कफन हो गया है। साथ ही इसमें 2 कपड़े रहेंगे। एक कपड़ा मैयत के गुस्ल देने से पहले जिस्म पर उड़ाने का एक कपड़ा रहेगा और दूसरा कपड़ा गुस्ल देने के बाद मैयत के जिस्म पर उड़ाने के लिए कफन पहनाने से पहले ये दूसरा कपड़ा रहेगा। ये 2 कपड़े रहेंगे और इसमें 3 डोरियां रहेंगी। ये कमर के लिए रहेगी और ये सर के पास बांधने के लिए और ये पैर के पास बांधने के लिए, ये 3 डोरियां रहेंगी। और इसमें गुस्ल देने वाला एक आदमी रहा तो एक थैली रहेगी जो अपने हाथ को बांधकर सदर का हिस्सा धुलाएगा और 2 आदमी है तो 2 थैलियां रहेंगी। और इस कफन के अंदर रोई, काफूर और इतर रहेगा और एक नहलाने के लिए साबुन, सुरमा वगैरह की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया कफन। अब इसके बाद हम कफन कैसे देंगे वो बताएंगे। मैयत का उसूल बड़ा आसान उसूल है और अफसोस इस बात की है कि आज हम मैयत के उसूल से वाकिफ नहीं हैं। जब हमारे अपने घर में किसी का इंतकाल होता है तो हम बाहर से वसालों को बुला कर लाते हैं और वो अपनी मर्जी से उसूल देकर चले जाते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। ये उसूल बड़ा आसान उसूल है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जब आप आज उसूल का तरीक़ा देख लेंगे तो इंशाअल्लाह इससे मुकम्मल वाकिफ हो जाएंगे और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि अपने रिश्तेदारों में हो या फिर महल्ले में किसी का इंतकाल हो तो आप लोग खुद आगे बढ़िए और अपने हाथों से उसूल देने की कोशिश कीजिए। तो बहुत अफसोस की बात है, हमारे अपने लोग बढ़ते और उसूल देने के लिए बाहर से लोग आते हैं, हमको अपने मैयतों को उसूल देना नहीं आता। बहुत अफसोस की बात है। ये सीखना ज़रूरी भी है, इसीलिए आपने सिखाया जा रहा है। ये देखिए मैयत है, मैयत है। आमतौर पर घर में अख्तलाफ होता है मैयत को कैसे लिटाना चाहिए। इसके लिए कोई दलील नहीं है कि मैयत को घर में कैसे लिटाना चाहिए। हर घर की नौइयत अलग होती है। जैसे आपको सहूलत है आप अपने घर में वैसे मैयत को लिटा सकते हैं।
بہت زیادہ اختلاف پیدا ہوتا کہ ایسے لٹایا جائے ویسے لٹایا جائے، اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جیسے آپ کو میت گھر میں رکھنے میں سہولت ہوگی، آپ ویسے میت کو گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم غسل کا طریقہ آپ کو بولیں۔ ہاں گھر میں جی مغرب کی طرف آنا، اگر میت کھل گئی تو سیدھا قبلے کی روک ہوگی، میت اٹھنے کا سوال ہی نہیں ہونا۔ غسل باتیں ہیں، دیکھیے میت کو غسل دینے کے لیے جیسے ہی تختے پر لائیں گے تو سب سے پہلے ایک کپڑا جسم پر ڈال دیں گے۔ یہ کپڑا جسم پر ڈالنے کے بعد اب اس کے کپڑوں کو جسم سے نکالنے کے لیے بہت دشواری ہوتی ہے، کیونکہ ہاتھ وغیرہ صحیح نہیں اٹھ سکتے۔ کپڑے کو یہاں سے کاٹ دیں گے، یہاں سے یہاں تک کاٹیں گے اور یہاں سے یہاں تک کاٹیں گے۔ اس کے بعد اوپر کا کپڑا اوپر سے اور نیچے کا کپڑا نیچے سے آسانی سے نکال دیں گے، کھینچی کے ذریعے کاٹ دیں گے۔ یہ اتارنا بہت مشکل ہے، آستین وغیرہ سے کپڑے کا نکلنا مشکل ہے، اس لیے اس کو کاٹ دیں گے، کاٹ کے مکمل کپڑا علیحدہ کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ کپڑے کو اس طریقے سے پکڑیں گے، اس طریقے سے ایک پکڑ لے گا اور دوسرا بندہ ہاتھ ڈال کر اگر ناڑا وغیرہ بنا ہوا تو کھول دے گا، یا لنگی وغیرہ کی کھیلی وغیرہ تو کھول دیں گے اور اس کو کھینچ کر آسانی سے اتار لیں گے۔ اس وقت اس کپڑے کو پکڑے رہیں گے، ایسے کپڑے کو پکڑے رہیں گے اور دوسرا کوئی شخص کپڑے کو کھینچ کر اتار لے گا۔ بڑی آسانی کے ساتھ کپڑا اتر جائے گا، کوئی دشواری کوئی دقت نہیں ہوگی۔ غسل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل بیری کے پتوں اور کافور کے ذریعے سے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جب غسل دیا جا رہا تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زینب کو بیری کے پتوں اور کافور سے غسل دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے پانی گرم کرتے وقت اسے بیری کا پتا ڈالا جائے گا اور پھر آخر میں کافور بھی اسے ملا دیا جائے گا۔ رہا مسئلہ یہ کہ کیا میت کو گرم پانی ہی نہلانا چاہیے یا ٹھنڈا پانی بھی نہلایا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے میت کو ٹھنڈا پانی بھی نہلایا جا سکتا ہے، میت کو ٹھنڈا پانی بھی نہلایا جا سکتا ہے۔ جیسے لازم کر لیتے کہ پانی گرم ہونا ہی ضروری ہے۔ اگر میت کے جسم پر میل وغیرہ ہے، گرم پانی سے میل آسانی کے ساتھ نکلتا ہے، اسی لیے وہ پانی کو گرم کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں پر ایسا انتظام نہیں ہے کہ پانی گرم کیا جائے تو وہاں پر پانی گرم نہیں ہوا، اس لیے میت کو غسل نہیں دیا جائے گا، یہ بات غلط ہے۔ پانی گرم کرنے کی سہولت آپ کو نہیں ہے، آپ ٹھنڈے پانی سے بھی غسل دے سکتے ہیں، لیکن اس پانی کے اندر بیری کا پتا ڈالنا ضروری ہوگا اور اس پانی کے اندر کافور ڈالنا ضروری ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ورنہ پانی ٹھنڈے پانی سے بھی غسل دیا جا سکتا ہے اور گرم پانی سے بھی۔ جب ہم میت کو جسم سے کپڑے اتار دیں، اتارنے کے بعد اب میت کا غسل دینا ہے تو کوئی ایک مثال ہے، ہاں اس طریقے سے دیکھیے، سب سے پہلے غسل دینے سے پہلے نجاست کا دور کرنا ضروری ہے۔ میت کو ایسے اٹھائیں گے، اتنا اٹھائیں گے اور پیٹ کو دبائیں گے، اچھے طریقے سے دبائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ٹیبل میں بھی نیچے سوراخ ہے، ہر نہلانے کے تختے میں سوراخ ہوتا ہے تاکہ وہ گندگی نکل جائے۔ اس طریقے سے پیٹ کو اچھا دبائیں گے تاکہ پیٹ کے اندر جو گندگی ہے یا پیٹ میں جو ہوا بھری ہوئی ہے یا پیٹ میں جو پانی ہے، جیسے ہی آپ پیٹ کو دبائیں گے وہ پیخانے کے راستے سے یا منہ کے راستے سے پانی وغیرہ جو منہ کے راستے سے نکل جائے گا یا پھر نجاست وغیرہ ہے وہ پیخانے کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہاں پر ایک بات جاننی ضروری یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب بندہ سو جاتا ہے اس کو نیند لگ جاتی ہے، جیسے ہی اس کو نیند لگتی اس کے پیخانے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اسی لیے سونے والے بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اٹھ کر وضو کر لے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس راستے سے ہوا وغیرہ خارج ہوئی یا نہیں، وہ نہیں جانتا، احتمال رہتا ہے کہ ہوا وغیرہ خارج ہو جائے۔ آپ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، تھک جائیں گے، بیٹھنے کے لیے گزارش کی جا رہی ہے کہ بیٹھ کے آرام سے دیکھو۔ تو جیسے ہی آنکھ لگ جاتی ہے ویسے ہی بیٹھنے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ مرنے والا بندہ سونے والے بندے کی طرح ہوتا ہے، اور جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے یا وہ مر جاتا ہے ویسے ہی اس کے بیٹھنے کا راستہ کھل جاتا ہے۔
जैसे आम तौर पर आप देखिए जानवर वगैरह को भी आप देखे होंगे, जब मर जाते हैं तो उनके पिछले रास्ते से गोबर या गलासत वगैरह निकल आती है। जैसे ही आग बंद होगी वैसे ही मखात का रास्ता खुल जाएगा और मरने वाले बंदे का रास्ता खुल जाता है। जब हम उसको उठा के और पेट दबाते हैं तो आसानी के साथ गंदगी वो बाहर आती है। अगर हम इब्तिदा में ये काम अंजाम नहीं देंगे, सफाई नहीं करेंगे, तो बाद में कफन में रखने के बाद मैयत के हिलने की वजह से गंदगी बाहर आ सकती है, क्योंकि वो रास्ता खुला हुआ है। किसी को कई दिन से पेशाब और पैखाना बंद होता है और वो इस वक्त आसानी से निकल आ सकता है। बेहतर ये है कि गुस्ल देने से पहले ये नजासत को दूर करना जरूरी है। 3 मरतबा इस तरीके से उठाएंगे, 3 मरतबा गर्दन के नीचे हाथ देकर उठाएंगे और पेट को दबाएंगे, अच्छी तरीके से दबाएंगे ताकि पेट के अंदर की गंदगी बाहर आ जाए। जो लोग गुस्ल देते हैं या गुस्ल देते वक्त हाजिर रहे होंगे वो इस बात से बखूबी वाकिफ होते हैं। जैसे ही पेट दबाया जाता है, जितनी गैस पेट में भरी होती है वो पूरी बाहर आ जाती है और गंदगी अगर है पूरी गंदगी बाहर आ जाती है। और अगर पेट के अंदर पानी भरा हुआ है, जैसे ही पेट दबाएंगे मुंह के जरिए से पानी पूरा बाहर आ जाता है। ये सफाई करना बहुत जरूरी है। जब ये सफाई हो जाएगी, आप मुतमईन हो जाएंगे कि पेट के अंदर अब कोई गंदगी नहीं है और दबाने से भी कोई चीज़ निकलने वाली नहीं है। उस वक्त मैयत को इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे और ऐसे किरास करेंगे, कपड़ा बढ़ा लेंगे और पीछे से पानी डालकर सफाई कर देंगे, घर वगैरह के अंदर जब आप गुस्ल दे रहे हैं मैयत को तो नीचे एक मट्टी का टोकरा रखेंगे। जब उठाकर दबाया जाएगा पेट तो नीचे वाले सुराख के जरिए से गंदगी मट्टी के अंदर गिरेगी, नीचे गिरकर नहीं फैलेगी, वो मट्टी के अंदर गिरेगी और उसके बाद पानी डालने से पहले मट्टी का टोकरा अलहदा कर देंगे और पानी डालकर आप सफाई कर लेंगे। जब आप मुतमईन हो जाएंगे कि जो पीछे से अच्छी सफाई हो गई है, इस तरफ से भी कवर करेंगे और पानी बहाएंगे और इस तरफ से भी कवर करके पानी बहाएंगे ताकि गंदगी तख्ते पर लगी ना हो और वो और फैले ना, इसीलिए पानी डालकर साफ सफाई कर देंगे। इसके बाद ये थैलियों में से गुस्ल देने वाला एक थैली ले रहा और उसको इस तरीके से बांध लेंगे, क्योंकि अब मैयत के सदर के हिस्से को साफ करना है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदर साफ करने के लिए बाएं हाथ इस्तेमाल करने की तालीम दी है, दाएं हाथ से आपने मना किया है। मैयत का भी अगर सदर साफ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको बायां हाथ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अब आप सबसे पहली बात मैयत को लिटाने के बाद मैयत के जिस्म से कपड़े उतार दिए और उतारने से पहले इस कपड़े को डाल दिया सदर छुपाने के लिए। ये कपड़ा बहुत पतला होता है, पानी में भीगने के बाद इससे जिस्म नजर आ सकता है। सदर छुपाने के लिए आप अपने घर से किसी भी किस्म का मोटा कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैयत के लिए अपने घर का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते, अगर वो इस्तेमाल होगा तो फिर उसको उठाकर फेंक देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। जो कपड़ा मुनासिब है, बड़ा कपड़ा हो और सदर को ढांपने वाला कपड़ा हो, सदर नजर आने वाला ना हो। जैसे जिंदा आदमी अपनी सदर किसी को दिखाना नहीं चाहता, वैसे ही मरने वाले की सदर की हिफाजत करना गुस्ल देने वालों की जिम्मेदारी होती है। जब हम गुस्ल देने के लिए ठहरे तो मैयत की सदर का खास लिहाज रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब जो भी कपड़ा मुनासिब होगा वो कपड़ा हम सदर के लिए रखेंगे और कपड़े उतारने के बाद पेट को दबा देंगे, गंदगी को दूर कर देंगे। गंदगी दूर होने के बाद अब हमको गुस्ल शुरू करना है। जैसे जनाबत का गुस्ल है वैसे ही ये भी गुस्ल है। जनाबत का गुस्ल क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 मरतबा हाथ धोना, फिर उसके बाद बाएं हाथ से सदर का हिस्सा धोना, सदर का हिस्सा धोने के बाद मुकम्मल वजू करना, वजू करने के बाद चुल्लू से पानी लेकर सर पर डालना और दाहिने जानिब से जिस्म पर पानी बहाना। ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत के गुस्ल का बताया है। मैयत का गुस्ल भी बस इसी तरीके से। गंदगी के साफ होने के बाद अब हम पानी डालकर इस कपड़े को भिगा देंगे। अगर ये सूखा रहेगा तो ये हिलते रहेगा, पानी डाल देंगे तो कपड़ा जिस्म से चिपटा हुआ रहेगा।
और बाएं हाथ अंदर सतर के हिस्से पर डालेंगे और सतर के हिस्से में अच्छे तरीके से रगड़ कर धो देंगे। और सतर के हिस्से में दोनों चटों के दरमियान, रानों के बीच में ऐसी जगह मैल वगैरह भी हो सकता है और गंदगी भी हो सकती है, इसलिए धुलाने वाला अच्छे तरीके से धुलाएगा। और यहाँ पर जो भी गुस्ल देने के लिए आएगा वो अमानतदार आदमी होना जरूरी है। यानी ऐसा आदमी ना हो जो गुस्ल दे और मैयत के जिस्म के अंदर कोई ऐब देखे और बाद में लोगों के सामने बोलता फिरे, ऐसे आदमी को गुस्ल के लिए नहीं रखना चाहिए। गुस्ल के लिए तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो अमानतदार हो, क्योंकि मैयत के अंदर कई एक ऐब हो सकते, उसने अब तक छुपा कर रखा, किसी से जाहिर नहीं किया। जब आप गुस्ल देने के लिए आए हैं तो आपके लिए जरूरी है कि उसके अंदर जो भी ऐब देखेंगे उस ऐब को छुपाना, किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। अब सतर का हिस्सा धोते वक्त पैर को इस तरीके से फैला देंगे ताकि सतर के हिस्से में धुलाने में हमारे लिए आसानी हो। जब आप मुतमईन हो गए, सामने का हिस्सा मुकम्मल साफ हो गया, इस तरीके से कपड़ा उठाएंगे और पानी डालेंगे। पानी डालकर या पानी डालने के लिए एक आदमी को रखेंगे, आप थोड़ा सा कपड़ा उठाएंगे, पूरा नहीं उठाएंगे, सतर नजर आए जैसा, थोड़ा सा कपड़ा उठाएंगे और पानी डाल देंगे। इसके बाद मैयत को पलटा कर पिछला हिस्सा धुलाएंगे। मैयत को पलटाने के लिए एक पैर दूसरे पैर पर डालेंगे। ये पैर पे पैर डालना ये कोई सुन्नत नहीं है, ये इसलिए डालते हैं कि मैयत के अंदर थोड़ा ग्रिप रहता, अगर खुला पैर रखेंगे पलटाने गए तो पूरी मैयत सरक सकती है, और एक पैर दूसरे पैर पे डालने में ग्रिप मिलती है। मैयत को इस तरीके से पलटाया जाएगा, करवट किया जाएगा और एक शख्स कपड़े को, सतर के कपड़े को ऐसा पकड़ा रहेगा। ये कपड़ा नहीं छोड़ेंगे, ये कपड़ा पकड़े रहेंगे ताकि सतर खुला ना रहे, और ये यही हाथ से सतर का पिछला हिस्सा साफ तौर पर धुलाएंगे। ये सतर का हिस्सा धुलाते वक्त किसी किस्म की कराहियत और नापसंदीदगी का इजहार नहीं करना चाहिए। ऐसे धुलाना चाहिए जैसे एक माँ अपनी औलाद, अपने बच्चे का सतर धुलाती है। माँ अपने मासूम बच्चे का सतर धुलाने के लिए किदराहट महसूस नहीं करती, नागवारी महसूस नहीं करती, वो अपने बच्चे से गंदगी को दूर करना चाहती है, उसका यही मकसद होता है। और यहाँ पर इस मैयत से गंदगी को दूर करना हमारा यही मकसद होना चाहिए। इसके तहत हम गंदगी को साफ करेंगे, कोई कराहियत महसूस नहीं करेंगे, कोई नापसंदगी का इजहार नहीं करेंगे, बल्कि मुकम्मल तौर पर अगला और पिछला सतर का हिस्सा धुला देंगे। जैसे ही सतर का हिस्सा धुला दिया जाएगा, अब इसका कोई काम नहीं रहेगा, इसको निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि हमने इससे सतर का हिस्सा धुलाया था, किसी काम की नहीं रहेगी, इसको हम कचरे में डाल देंगे। उसके बाद अब रहा वुजू कराना। 3 मरतबा दोनों हाथ और धुलाएंगे। पहले सीधे हाथ से शुरू करेंगे, उसके बाद बाएं हाथ को धुलाएंगे। बाएं हाथ, दोनों हाथ 3 मरतबा धुलाने के बाद वजू में कुली कराया जाता है। मुंह अगर बंद है तो जबरदस्ती मुंह खोलना और पानी डालना इसकी जरूरत नहीं है। पानी लेंगे और मुंह पर सिर्फ ऐसा हाथ फेर देंगे, यही काफी। पानी लेंगे, मुंह पर हाथ फेर देंगे, इतना ही काफी है। रहा मसला नाक का, नाक में गंदगी हो सकती है, कफन के साथ रुई आएगी, इस रुई को लेंगे और ऐसी बत्ती बनाएंगे। ये बत्ती बनाएंगे, पानी में भिगोकर नाक के सुराख में डालकर घुमाएंगे। ये रुई अच्छी होने के बाद नाक में डालकर जब घुमाएंगे तो नाक के अंदर की गंदगी भीग कर मुकम्मल तौर पर इस रुई को लगकर आ जाएगी। अगर गंदगी निकल रही है तो एक से ज्यादा मरतबा आप ये रुई को नाक में डालेंगे, अगर गंदगी लगी है फेंक देंगे, दूसरी रुई लेंगे और दूसरी बत्ती बनाकर नाक में डालेंगे। इस तरीके से नाक को, दोनों नाक के सुराखों को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाएगा। और ये इंतहाई जरूरी चीज है। जब नाक मुकम्मल तौर पर साफ हो गई, आपको इत्मीनान हो गया, पानी लेंगे और इस तरीके से चेहरे को धुलाएंगे। 3 मरतबा चेहरे को धुलाएंगे। 3 मरतबा चेहरे को धुलाने के बाद सीधा हाथ कोहनी तक धुलाएंगे और उसके बाद बायां हाथ कोहनी तक धुलाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू में 1-1 मरतबा, 2-2 मरतबा, 3-3 मरतबा आज़ाए वजू को धोने की तालीम दी है। इसलिए हम 1 ही मरतबा या 2 मरतबा या 3 मरतबा, जायद 3 मरतबा, कम से कम 1 मरतबा दोनों हाथों को कोहनियों तक धुला देंगे।
फिर उसके बाद पानी लेंगे, सर का इस तरीके से मसा करेंगे जैसे अल्लाह के नबी ने बताया है, और फिर पानी लेकर कानों का मसा भी मुकम्मल तौर पर करेंगे जैसे आप सर ने बताया। अब कानों के मसे के बाद चाहे तो पैर के साथ ही धुला देंगे या फिर पैरों को आखिर में धुलाएंगे, जैसे गुस्ले जनाबत में दोनों तरीके साबित हैं। पहली मरतबा धुला देंगे, वजू के साथ ही धुला देंगे, या फिर गुस्ल मुकम्मल होने के बाद आखिर में धुलाएंगे। जब वजू करा दिया गया तो पानी सीधे जानिब से बहाया जाएगा। अब बहाने के बाद साबुन वगैरह, इसके अंदर साबुन वगैरह भी होता है, तो साबुन वगैरह पूरे जिस्म पर लगाएंगे और सर पे साबुन लगाएंगे, कानों के अंदर अच्छे तरीके से लगेंगे, गर्दन के अंदर लगेंगे, गर्दन के नीचे मैल हो सकता है। मैल जमा रहने के जो मकामात है, गर्दन है और बगल का हिस्सा है और पीठ का हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी वगैरह है, और इसी तरीके से पैर है और ये पिल्लियों वगैरह पर भी मैल जमा हो सकता है। इन मकामात को अच्छे तरीके से घस कर साफ करके धुलाएंगे। जरूरत पड़ी 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, और जायद जरूरत पड़ी जायद मरतबा भी गुस्ल देंगे। हमारा मकसद यहाँ पर मैयत के जिस्म से गंदगी को दूर करना होगा, और जब हमें इत्मीनान हो जाएगा कि अब मैयत के जिस्म से मैल खत्म हो गया है, हम मुतमईन हो गए हैं, तो फिर गुस्ल वहीं पर खत्म हो जाएगा। देखिए 3 मरतबा पानी बहाने के बाद चाहे तो आप इसके लिए साबुन का इस्तेमाल कीजिए, या फिर मैल जायद होने की वजह से नारा अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर और कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं मैल को दूर करने के लिए, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। बसा औक़ात कई दिन से मरीज आदमी होते हैं, कई दिन से नहीं नहा सकते, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनके बालों के अंदर गंदगी जमा हो जाती है, मैल जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिकन हो जाते हैं। इस गंदगी को दूर करने के लिए जो चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। जैसे आप मीठा इस्तेमाल करना चाहते हैं बालों की गंदगी को दूर करने के लिए, या कोई शैम्पू वगैरह या कोई साबुन, भारी साबुन वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मकसद यहाँ पर ये है कि मैयत के सर में जो गंदगी है या जिस्म पर जो गंदगी है ये खत्म हो जाए। इस तरीके से हम सर को रगड़ेंगे और सर की गंदगी को दूर करेंगे, बगलों के अंदर और जहाँ जहाँ मैल जमा होता है उन मुकामात को अच्छे तरीके से धोकर साफ कर देंगे। राम मसला, बाद लोग बीमारी की वजह से उनके नाखून नहीं काटे जा सकते, काफ़ी बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं, और जब आप गुस्ल देते हैं तो ये नाखूनों के अंदर का मैल वाज़ेह नजर आता है और पानी में भीगकर ये नरम भी हो जाता है। आप एक काड़ी लेकर इन नाखूनों के मैल को आसानी से निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। हाथ भीगे हुए रहते हैं, मैल नरम हो जाता है, काड़ी से निकालने आसानी से निकल जाए। यहाँ पर भी मैल को हम बाकी नहीं रखेंगे। अब रहा मसला, बहुत सारे लोग इस मसले में परेशान रहते हैं कि बगल के बाल और ज़ेरे नाक के बाल बढ़े हुए रहते हैं, क्या वो हमें साफ करना है? इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये बाल निकालने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे नाखून बड़े बड़े हैं तो मैयत के नाखून काटने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बस जिस्म से मैल को साफ करना ये वाहिद मकसद है। आखिर में पानी के अंदर काफूर मिला दिया जाएगा और पूरे जिस्म पर बहा दिया जाएगा। बहाते वक्त इस तरीके से पानी मुंह पर हाथ रखेंगे ताकि मुंह के और नाक के अंदर पानी ना चला जाए। गुस्ल देते वक्त मुंह अगर खुला है और ज़ुबान के ऊपर गंदगी नजर आ रही है तो एक काड़ी के ऊपर रुई को लेंगे और रुई को लपेटेंगे इस तरीके से, क्या अगर इस तरीके से लपेटेंगे, अगर आपकी उंगली अंदर जाती है, आपकी उंगली अगर मुंह में दाखिल होती है तो आप मुंह के अंदर उंगली डालकर रुई के जरिए से गंदगी को साफ करेंगे। लेकिन मुंह इतना ज्यादा खुला नहीं है कि आपकी उंगली अंदर जा सके, बल्कि कोई दूसरी चीज छोटी मोटी या गाड़ी वगैरह जा सकती है, तो गाड़ी वगैरह को भी रुई लपेट कर आप मुंह की गंदगी को साफ कर सकते हैं। मुंह अगर बंद है तो जबरदस्ती खोलकर मुंह की सफाई करना ये जरूरी नहीं है। और जब मुंह बंद होगा तो मुंह के अंदर पानी भी दाखिल नहीं होगा। अगर मुंह खुला है तो ऐसे वक्त में मुंह में पानी दाखिल हो सकता है। गुस्ल देने के बाद चाहे मुंडी को पठाया जाएगा और ऐसा किया जाएगा, मुंह के अंदर का पूरा पानी निकल जाएगा। एक मरतबा उस तरफ करेंगे और एक मरतबा इस तरफ करेंगे ताकि मुंह के अंदर का पूरा पानी निकल जाए। सामने से नहलाने के बाद
मैयत को इस तरीके से करवट किया जाएगा, करवट करके एक शख्स गर्दन पर इस तरीके से पकड़ा रहेगा और दूसरा बंदा पूरी अच्छे तरीके से सतह के हिस्से को तो धुला चुके हैं, पीठ वगैरह को रगड़कर साफ धुला देगा और वैसे ही इस तरफ पर खाया जाएगा और धुला दिया जाएगा। गर्ज ये जब मैयत का मुकम्मल गुस्ल हो गया तो आखिर में बहुत सारे लोगों का तरीका होता है, जब काफुर का पानी डाला जाता है, खानदान के बड़े लोगों को सबको बुलाया जाता है, पानी डालो पानी डालो। इसी भी कोई दलील नहीं है, कोई दलील नहीं है। बच्चों को बुलाया जाता, बाप को बुलाया जाता, रिश्तेदारों को बुलाया जाता, पानी डाल दो, दूसरे एक मरतबा पानी डाल दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा घर वाले आकर पानी डालने से कोई सवाब वगैरह भी मिलने वाला नहीं है। एक बार पानी डालने की जरूरत नहीं है, घर वालों को मुकम्मल गुस्ल देने की जरूरत होती है। वो गुस्ल की तैयारी करें, कैसे गुस्ल देना सीख लें, वो गुस्ल दें। सिर्फ एक बार पानी डाल के हमारा हक अदा हो गया, ये बात गलत है। जब आप मुकम्मल तौर पर गुस्ल दे दिए और आप इस बात से मुतमईन भी हो गए तो ऐसे वक्त में दूसरी चादर लेंगे और इस चादर को जिस्म पर ऐसे उड़ाएंगे, जिस्म पर ऐसे उड़ाएंगे और एक बंदा कपड़े को ऐसे पकड़े रहेगा और दूसरा शख्स इस कपड़े को आहिस्ता से खींच लेगा। इसको यहाँ पर पकड़ेंगे, खींच लेंगे, क्योंकि ये गुस्ल से पहले उड़ाया है। इस कपड़े के अंदर मैयत को लपेटेंगे, काफी बड़ा कपड़ा लेंगे, मैयत को ऐसे पूरा लपेट देंगे ताकि मैयत को उठाते वक्त उठाकर कफन पर ले जाने तक के निचला हिस्सा भी छुपा रहे। और जब हम उठाएं तो हमारा हाथ सतह वगैरह को ना लगे, बल्कि कपड़े के जरिए से हमको मैयत को उठाना है। इस तरीके से लपेटेंगे और ऐसे उठाएंगे। अब इसके बाद कफन कैसे पहनाया जाएगा होता है, इसी को ये 3 चादरों वाला कफन है। कफन जायद से जायद 3 कपड़ों में दिया जाएगा, कम से कम 2 कपड़ों में, और कपड़े की तंगी में एक ही कपड़े में भी कफन दिया जाएगा, एक ही कपड़े में। जैसे मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इन दोनों ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए तो उस वक्त इनके पास कपड़ा नहीं था, एक ही चादर थी। मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसाब बिन उमैर के लिए कपड़ा नहीं है। जब एक ही चादर है, अगर वो उनके सर पर खींचते हैं तो पैर खुल जाते हैं और पैरों की जानिब खींचा जाता है तो सर खुल जाता है, तो क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस चादर को तुम सर की तरफ खींच लो और पैरों पर असगर नामी घास डाल दो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक ही चादर के अंदर कफन दिया गया। अगर ऐसी मजबूरी आ जाए, कपड़ा आपको नहीं मिल रहा है, एक ही चादर है, एक ही कपड़ा है, तो उसमें कफन किया जा सकता है। और 2 कपड़े, अगर कोई हालत एहराम में है, एहराम की हालत में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको एहराम की चादरों में लपेटकर कफन किया जाएगा। उसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चादरों में कफन देने की तारीफ दी है। देखिए आप मैयत को इस तरीके से उठाकर लाए थे, नहलाने के तख्ते से लाने के बाद अब कफन में रखने के बाद सबसे पहले ये चादर है, इस चादर को लपेटेंगे। इस चादर को ऐसे पकड़ लेंगे, पकड़ो, ये चादर को पकड़ेंगे, इनको पकड़ने के बाद क्योंकि सदर का हिस्सा ढपा रहना है, किसी की नजर उस पर नहीं पड़ना है, पहले ऊपर के कपड़े को अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे और उसके बाद इस चादर को खींच कर निकाल लेंगे। ये चादर बाहर आ गई। अब रहा कफन, इसको इस तरीके से पैरों के नीचे ले लेंगे ताकि ये ना
ہمارے پاس کافور تھا، پہلے ہم نے پانی میں بھی اس کو ڈالا تھا، بقیہ کافور کو باریک کر کے بغلوں کے حصے میں اور یہ چڈوں کے حصے میں اور ہاتھوں اور پیروں میں بھی کافور لگا سکتے ہیں، کافور لگا سکتے ہیں۔ یہ کافور جب تک رہے گا حشرات الارض سے میت محفوظ رہے گی، یعنی زمین کے جو کیڑے رہتے ہیں وہ کیڑے اس خوشبو کی وجہ سے، کافور کی وجہ سے قریب نہیں آئیں گے۔ جب تک اس کا اثر باقی رہے گا وہ حشرات الارض نہیں آ سکتے، اسی لیے یہ کافور ڈالا جاتا ہے۔ میت کو اس طریقے سے ایک چادر میں لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد دوسری چادر، دوسری چادر، اس کے بعد تیسری چادر لو، کوئی چادر اور یہ چادر یہ ایسا رہے گا۔ اب اس کے لیے 3 ڈوریاں پہلے سے ہم نے اس کو علیحدہ کر کے رکھا تھا۔ یہ چھوٹی ڈوری ہے جو سر کے پاس بعد میں باندھی جائے گی، اور یہ کمر کی ڈوری ہے اور اس کو پیروں کے نیچے سے لیں گے اور ایسے ہی کھینچ لیں گے، آسانی کے ساتھ کمر تک پہنچ جائے گی، یہاں تک کھینچ لیں گے اور یہاں پر ڈوری کو باندھ دیں گے۔ اور تیسری جو ڈوری رہے گی یہ پیروں کے پاس باندھنے والی ڈوری رہے گی۔ یہ غسل کا طریقہ ہے اور کفن پہنانے کا طریقہ ہے جو آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ اگر اس میں کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ میت اگر زخمی ہے، کسی جگہ سے زخم ہے، عام طور پر ڈائلسس والوں کو اور دوسرے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو بھی کچھ پٹیاں وغیرہ لگی بھی رہتی ہیں، اور ہاں، اور اگر ان کی پٹیوں کے نکالنے سے خون بہنے کا اندیشہ رہتا ہے تو ایسی صورت میں پٹیوں کو پہلے نہیں نکالیں گے، وہ پٹیوں کو پہلے نہیں نکالیں گے۔ جس کے نکالنے سے نقصان کا اندیشہ ہے، خون وغیرہ بہنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کو پہلے نہیں نکالیں گے۔ اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرنا کافی ہو جائے گا۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے دوران اعضاء وضو کو دھونا ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ پر مار لگا ہے، پٹی بنی ہوئی ہے، تو اس پر صرف ہاتھ کا پھیر دینا کافی ہوتا ہے، ہاتھ کا پھیر دینا کافی ہوتا ہے۔ میت کو غسل دیتے وقت بھی اگر میت کے جسم پر کوئی ایسا زخم ہے جس پر پٹی لگی ہوئی ہے اور اس کے نکالنے سے خدشہ ہے تو ایسی صورت میں صرف ہاتھ پھیر دینا کافی ہوگا۔ اگر ایسی میت جو جلی ہوئی ہے، یعنی اوپری حصہ پورا جل گیا اور نچلا حصہ اچھا ہے، جتنا حصہ اچھا ہے اتنا ہی حصہ آپ کو دھلا دینا یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ جلی ہوئی میت ہے، نہلانا مشکل ہے، زبردستی پورے جسم پر پانی بہانا یہ ضروری نہیں ہے، صرف جسم پر ہاتھ پھیر دینا آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اگر ایسی میت آ جائے جس کے تعلق سے اتنا نہلانا ناممکنات میں سے ہے تو ایسی صورت میں اس میت کو صرف تیمم کرایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تیمم غسل کا بدل ہے، جیسے تیمم وضو کا بدل ہے ویسے ہی تیمم غسل کا بھی بدل ہے۔ ایسی میت آ جائے جس کو نہلانا ناممکنات میں سے ہو، یعنی سڑک حادثے میں مکمل طور پر جسم پیسے گیا ہو اور اس کو نہلانا ناممکن ہو، ایسی صورت میں صرف اس کو تیمم کرایا جائے گا۔ تیمم کا طریقہ یہی ہے، ایک ہاتھ زمین پر ماریں گے اور اس کے چہرے پر اگر وہ بھی صحیح سلامت ہے تو اس کے چہرے کو برابر پھیر دیں گے، اتنا ہی کافی ہے۔ بلا وجہ جو پٹیاں لگی رہتی ہیں ان کو کھینچ دیں گے تو ان کے ذریعے سے خون یا گندگی یا کوئی اور چیز جسم کے باہر آ سکتی ہے جو بہت مشکل ہو جاتی ہے بعد میں اس کو کنٹرول کرنا۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے پٹیاں وغیرہ بعد میں سہولت ہے تو نکالیں گے، اگر سہولت نہیں تو ویسے ہی پٹیوں کو چھوڑ دیں گے۔ ہاں، اب بعض لوگوں کے ناک سے اور منہ سے خون بہنے لگتا ہے، خون جیسے دماغ وغیرہ کی نگیں پھٹ جاتی ہے تو مسلسل خون بہنے لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ غسل دینے کے بعد جتنا ہو سکتا ابتدا میں دبا کر خون وغیرہ نکال دیں گے، بعد میں بھی اگر یہ خون جا رہا ہے غسل دینے کے بعد جیسے جیسے میت ہلنے لگے گی وہ خون جاری ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں منہ اگر کھلا ہے تو منہ کو وہیں رکھ کر بند کر دیں گے، یا پھر ناک میں اگر
नाक से खून जा रहा है तो नाक के अंदर भी रुई डालकर बंद कर देंगे। बाद मैयतों को नहलाने के बावजूद, गंदगी साफ करने के बावजूद भी गंदगी निकलते रहेगी। बिल्कुल पानी की तरह अगर उनके जिस्म में गंदगी मौजूद है और वो काफ़ी कोशिश के बावजूद भी मुकम्मल साफ नहीं हुई और बाहर निकलने का खदशा है, या फिर जिस्म के किसी हिस्से से, सतर वगैरह के हिस्से से खून वगैरह की जख्म की वजह से या मार की वजह से जा रहा है, तो ऐसी सूरत में रुई काफ़ी मकदार में लेंगे। और बच्चों को जिस तरीके से पैम्पर वगैरह पहनाया जाता है वैसे ही रुई को बिछा दिया जाएगा और उनके दोनों पैरों के बीच में से उसको पठा दिया जाएगा। यानी इतनी रुई रखेंगे कि उनके सतर का पिछला हिस्सा और सतर का अगला हिस्सा रुई में ढक जाएगा। दोनों पैरों के बीच में से नीचे और ऊपर, सतर के निचले हिस्से पर, सतर के ऊपरी हिस्से पर रुई को डाल देंगे ताकि जो भी गंदगी निकले वो कफन तक ना आए, उसी रुई के अंदर महदूद रह जाए। ये कब? पहले मुकम्मल सफाई करेंगे, मुकम्मल सफाई करेंगे, उसके बावजूद भी अगर निकल रही है तो उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। अगर हम रुई का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये कफन गंदा होने का अंदेशा और खदशा रहता है। नहीं, उसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। जैसे देखिए सुरमा है, ये इंसान की जीनत की चीज़ है सुरमा, और ये जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम या आइम्मा से कोई इसके आसार नहीं मिलते कि मैयत को सुरमा लगाया जाए। दूसरी चीज़, अबीर या संदल सीने पर डाल दिया जाता है और उसके सीने के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा जाता है। सीने के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिखने से कोई फायदा नहीं है। अगर उस सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है तो उसकी कामयाबी है। सीने के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखने से उसको कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। अगर मरने वाला मुवाहिद है तो हर हालत में उसको फायदा होगा, हर हालत में उसको फायदा होगा और वो कामयाबी पाएगा। अगर उसने दिल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं बिठाया, उसके लिए 1000 चीजें कर ले, उसको कोई फायदा पहुंचाने वाली नहीं है। वो बिल्कुल गलत मसला है। और चेहरे दिखाई की जो रस्म की जाती है, आमतौर पर गस्साल क्या करता, गुस्ल देने के बाद चेहरे के ऊपर कपड़ा डाले जाता और वहां घर से कटोरा मंगाया जाता, नया कटोरे वहां रख दिया जाता और आने वाले चेहरा देखने वाले चेहरा देखी रस्म के लिए उसमें रकम डाल देते और चेहरा देखकर जाते। ये एक बिदात है जो मुसलमानों के अंदर रायत हो गई है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी हरकत बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। चेहरा दिखाई की भी कोई रस्म नहीं है। अब रहा मसला, बहुत सारे लोग जो आमतौर पर किताब और सुन्नत से वाकिफ नहीं है, अगर शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी को मैयत को छीने और देखने नहीं दिया जाता। बीवी का इंतकाल हो गया तो शौहर मैयत को नहीं देख सकता। क्यों? ये कहा जाता है कि जैसे ही इंतकाल हुआ तुम्हारा रिश्ता टूट गया। ये इंसानों की अपने मुंह की बात है, शरीयत ऐसी कोई बात नहीं बताई। रिश्ता टूटने वाला नहीं है, रिश्ता पायदार होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम रिश्ता देखो तो दीनदार लड़की से रिश्ता तय करो। इसका ये इतना मजबूत रिश्ता है कि अगर दोनों हालत ईमान में रहे और यहीं से इनका खात्मा हो ईमान की हालत में, क़यामत वाले दिन फिर ये जोड़ा मिलने वाला है। ये मियाँ और बीवी, शौहर और बीवी क़यामत में मिलने वाले हैं। ये एक दूसरे के लिए हराम नहीं हो सकते। देखिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आए आयशा, अगर मेरी जिंदगी में तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा। मेरी जिंदगी में अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि बात मुझे बहुत देर से पहुंची। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी बीवी ने गुस्ल दिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुस्ल दिया। गुस्ल मैयत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के वसल्लम की चौथी बेटी थी, फातिमा का इंतकाल हो गया तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथ से अपनी बीवी का गुस्ल दिया। देखिए अगर ऐसे हालात आज भी पेश आ सकते हैं, आप किसी ऐसे मुकाम पर वहाँ पर कोई और लोग नहीं है, आप तने तना है, आपकी बीवी के साथ में बीवी का इंतकाल होगा या शौहर का इंतकाल होगा, दोनों जो जिंदा रहेंगे वो अपनी
मरहूम को गुस्ल दे सकते हैं। को कैसे उतारना चाहिए, कब्रिस्तान में जाने के बाद मैयत को कैसे उतारना है, मैयत का चेहरा किबला रुख आना है। अगर हम मैयत को उतार रहे हैं, उसका चेहरा किबला रुख आ रहा है, तो मैयत को इस तरफ रखेंगे और पैरों के जरिए से इस तरफ रखेंगे और पैरों की तरफ से मैयत को उतारकर इस तरफ डालेंगे। खबर बनी हुई है, चेहरा इस जानिब आने वाला है, सर इस जानिब आने वाला है, तो डोला इधर रखा जाएगा और मैयत को हाथों पर ऐसे उतार दिया जाएगा। पैरों के जरिए से उतारा जाएगा, यानी पैरों की तरफ से उतारा जाएगा, सर यहाँ पर आ जाएगा। ये तरीका मैयत को उतारने का है। और जितनी तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है, ये सब गैर शरई हैं और ऐसी कोई तस्बीहात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाई। जी नहीं, कलमा बता रहा ना, कलमा लिखने की भी जरूरत नहीं, कलमा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। वो खुद कलमा पढ़ा हुआ है, वो खुद कलमा पढ़ा हुआ है। अब उसको आप क्या कलमा पढ़ेंगे? अब आप ना वो आपकी बात सुन सकता है, ना वो आपको देख सकता है, उससे कोई वास्ते नहीं है। देखिए, एक आदमी मरे हुए शख्स को कैसे बात सुना सकेगा, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को नहीं सुना सकते थे। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मत दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु, आप मरे हुए बंदे को अपनी बात नहीं सुना सकते और बहरे आदमी को आप अपनी बात नहीं सुना सकते, और जब वो पीठ फेर कर चले जा रहा है तो ऐसे आदमी को आप अपनी बात नहीं सुना सकते। कैसे सुना सकते? बहरा आदमी आपकी बात नहीं सुन सकता, और फिर मरा हुआ मुर्दा आपकी बात नहीं सुन सकता। सोया हुआ आदमी आपकी बात नहीं सुन सकता, तो मरा हुआ मुर्दा कैसे आपकी बात सुनेगा? नबी जब जो है सो मरे हुए बंदे को नहीं सुना सकते, तो आम इंसान एक मरे हुए बंदे को क्या सुनाएगा? उसकी कोई दलील नहीं, कोई उसकी दलील नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगली खबर को पसंद फरमाया, लहाद उसको कहा जाता है। खबर पूरी बनाई जाती है, ऐसी खुली खबर बनाई जाती है और अंदर एक मेहराब बना दिया जाता है लंबा, मैयत को उसके अंदर रखकर करवट किया जाता और कच्ची ईंटों से उसको बंद कर दिया जाता। ये पसंदीदा तरीका है। सिर्फ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के अलावा कोई दुआ नहीं है, कोई दुआ नहीं है। और आप मसालों के पास ठहरेंगे, मसालों को गुस्ल देते हुए देखेंगे तो बहुत अजीब 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 दुआएं पढ़े। एक मरतबा ऐसे ही वाक़या देखने में आया, चित्तल में एक इलाका है, वहाँ पर एक मैयत में हम लोग गए थे, तो हमको भी बुलाए थे गुस्ल देने के लिए। उससे पहले उनके रिश्तेदार गैर ज़रूरी बहस तकरार करके मसाल को लेकर आए थे, तो गुस्ल देते वक्त पानी बहाते अल्लाह पढ़ते जा रहा, पानी बहाते जा रहा। उसको ये नहीं मालूम कि कब पढ़ने की दुआ है, किसी क्या दुआ है, दुआ पढ़ना है नहीं मालूम उसको। वो पैखाने में दाखिल होने की दुआ है, क्या मैयत जो नहलाते हैं अल्लाह पढ़ा, पानी के समय बहाना, मालूम ही नहीं इनको, वाक़िफ़ ही नहीं है, बस पढ़ना है, दुआ पढ़ना है। और इसी तरीके से और एक वाक़या भी सुनने में आया कि एक मोहतरमा, एक बहुत ही उम्र रसीदा खातून, जब उसका इंतकाल हो गया तो गस्साल आई और वो गुस्ल दे रही है, और उस वक्त भी वो जो है सो गुस्ल देते हुए अल्फाज अदा करने के अल्लाह इसको हैज से निफास से पाक कर दे बोलते। वो बूढ़ी औरत है, हैज और निफास के मसाइल तो पहले ही खत्म हो गए और उसको हैज और निफास से पाक करने की दुआ पड़ गई। हालांकि कोई दुआएं मुस्तनद है नहीं, हदीस में साबित ही नहीं, हदीस से ये सब बनावटी चीज़ें हैं, लाइल्मी की बुनियाद पर सब काम किया जाता। इंशाअल्लाह मुझे इतनी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको देखा है, ये बड़ा आसान तरीका है, एक से ज़्यादा लोगों को सुन दीजिए, इंशाअल्लाह तरीका आ जाएगा। मैयत को तलकीन करने की बात होती है, उनके सवालात याद दिला दो दफनाने के बाद में। नहीं, हाँ, मरने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलकीन करो ला इलाहा इल्लल्लाह की,
تلقین یعنی تلقین کیا ہے؟ ان کے سامنے صرف کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھیں گے، زبردستی نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس وقت ضد میں آ جائے نہیں پڑھتا بلکہ انکار کر دیا، اس کے لیے نقصان ہے۔ وہ حالت سکرات میں ہے، نزا کی حالت میں ہے، وہاں پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی، صرف پڑھا جائے گا تاکہ اس کی زبان سے بھی الفاظ ادا ہو جائیں۔ یوٹیوب پہ اکمل صاحب ایک ضعیف حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بولے تھے کہ میت پہ تلقین کرو 3 سوالات کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، اور جو ہے وہ زندگی میں اگر وہ جو ہے ان سوالات کی تیاری کر لیا تو وہ آسانی کے ساتھ جواب دے گا۔ یہاں پر تلقین کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بندہ امتحان کی تیاری کرا ہی نہیں، اب اس کو جو ہے آپ آئے وقت جا کے بولیں گے تو کیا کرے گا؟ پہلے سے تیاری کرنا پڑتا، محنت کرنا پڑتا، جبھی جا کے کامیابی ملنے والی ہے۔ جی نہیں کیسا ہے معلوم؟ سوال کیا جائے گا تم میں جو نبی بھیجا گیا تھا وہ کون تھا؟ جو آپ دیکھیے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جی 4 سوالات نہیں، حدیث میں جو آیا ہے نا سندن صحیح حدیث کے ساتھ 3 ہی سوال، من ربو کا، ماں دین کا، من نبی کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو معلوم کس طرح ہوا، اس کے لیے سوال ہے قرآن کے ذریعے معلوم جی جانے سے معلوم جانے ہی ہے جی شیخ جانا ہی ہے۔ بولے 4 سوال ہے، جو عموماً جو ہے نا 3 سوال ہوتے ہیں، حقیقت میں 4 سوال ہوتے ہیں۔ دیکھیے حدیث جو ہے نا 3 سوالات کی حدیث ہے، 3 ہی سوالات کی حدیث ہے۔ اب غسل دینے والے بندے کے لیے ضروری ہے، مستحب عمل ہے، چاہے تو غسل دینے والا غسل کر لے یا وضو کرنا چاہے وضو کر لے، یہ مستحب عمل ہے۔ وضو تو اس کا کسی بھی صورت میں ٹوٹ ہی جاتا، کیونکہ جب صدر کے حصے میں ہاتھ لگاتا تو وضو تو ختم ہو جاتا۔ وضو کرنا تو اس کے لیے لازم ہے، وضو کرنا لازم ہے، لیکن اگر وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو غسل کر سکتا ہے۔ میت کو غسل کرنے دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، اور ایسے ہی جنازے کو کاندھا دینے والوں کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ جو جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، کاندھا دیتے ہیں یا جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ وضو کرنا چاہتے ہیں تو وضو کر سکتے ہیں، ان کے اوپر بھی لازم نہیں ہے۔ اور اس دوسری جگہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک اہم بات ہے یہ ہم اہل حدیثوں کے اندر بھی آ گئی، وہ کیا ہے؟ جیسے ہی میت کو دفنا دیا جاتا اعلان ہوتا کہ بھائی گھر پہ چلیے کھانے کا انتظام ہے۔ میت کو دفنانے کے بعد سارے لوگ میت کے گھر پر آتے ہیں اور وہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو نوحہ تصور کرتے تھے۔ نوحہ اسلام کے اندر حرام ہے اور نوحہ کرنے والوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ نوحہ صحابہ کہتے ہیں کہ میت کے گھر کھانا کھانا ہم نوحہ سمجھتے تھے۔ اب اس کے لیے مختلف لوگ مختلف تعبیریں کرتے ہیں۔ یہ تعبیریں اگر ہم کوشش کریں تو بہت ساری تعبیرات ہم اس میں کر سکتے ہیں۔ سنت کیا ہے، حکم کیا ہے، وہ ہم کو دیکھنا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، بس ہم کو رک جانا ہے۔ صحابہ اکرام اس سے رک گئے، ہم کو رک جانا ہے۔ میت کے گھر دوبارہ آنا اور میت کے گھر کھانا کھانا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ترجمان میں اس سے پہلے 2 مرتبہ یہ مضمون آیا، اور کتاب الجنائز کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے جس میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم اس کو نوحہ تصور کرتے تھے۔ دیکھیے میت کے گھر والے غم میں ہیں، آپ پکا کر لے جا کر ان کے گھر والوں کے واسطے دے سکتے ہیں۔ پوچھ لیا جاتا کتنے لوگ ہیں، کتنے رشتے دار ہیں، 50 آدمی ہیں، 25 آدمی ہیں، پوروں کا پکا کر لے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ لازم کر لیے میت کے گھر میں، یہ حالانکہ یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، میت کی موجودگی میں وہ اپنے گھر میں
गोश्त और दही लाने से मना कर देते हैं। मैयत के घर में गोश्त और दही लाने से मना करते हैं। मैयत जाने के बाद दही लाने के लिए कहा जाता है, ये बात भी गलत है, इसी भी कोई दलील नहीं है। मखसूस यही खाना, मखसूस वही खाना। अब आमतौर पर दही रोटी जो चलती है उसकी वजह ये है कि इसको पकाना नहीं पड़ता, रोटी तैयार मिल जाती है, दही आसानी से मिल जाता है, इसीलिए लाया जाता है। लेकिन ये एक रस्म बन गई, ये एक रस्म बन गई। इसके अलावा दूसरी चीज है तो लोग नागवारी का इजहार भी करते हैं, ये भी गलत चीज है। ऐसे सारी चीजें अपने घरों के अंदर से खत्म करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आहिस्ता आहिस्ता करके चीजों को खत्म चूल्हा नहीं जलाना, चूल्हा नहीं जलाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि देखो ये घर वाले गम के अंदर हैं, तुम इनके लिए खाने का इंतजाम कर दो। खबर में दफनाए का कुरान पढ़ते थे, नहीं पढ़ना है कुछ भी। वो दूसरे बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू मैयत के सराहने और पैदी पढ़ने की जो दलील है ना वो हदीस ज़ईफ है। हाँ, और दुआ के ताल्लुक से भी देखिए इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन ज्यादा सही बात मैं जहाँ तक तहकीक किया हूँ वहाँ पर ज्यादा सही बात यही मालूम हो रही कि इनफरादी दुआ की जाए। हर आदमी अपने अपने अंदाज में मरहूम के लिए दुआ करें इनफरादी तौर पर। सलातुल जनाजा जो है वो कहता है पढ़ाने में और उसका तरीका वो लोगों को नमाज जनाजा 4 तकबीरात के साथ पढ़ा जाए और उसके लिए जो सफ़ों की तादाद बताई जाती है कि 3 होना, 5 होना, 7 होना, 9 होना, इसकी भी कोई दलील वाज़ेह और सही नहीं है, मज़बूत दलील नहीं है। जैसी सहूलत है वैसे। और दूसरी बात, जनाजे के लिए बिल्कुल लग कर ठहर जाते हैं, इसकी भी कोई दलील नहीं है। हाथ हिलाने भी नहीं आता, रफ़्ल करने भी नहीं आता, नगात बांधने के लिए इतना ज़्यादा एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसकी भी कोई दलील नहीं है। शायद लोग रुकू और सजदा नहीं है, शायद लोग आ जाना इस मकसद के लिए करीब करीब ठहरा जाता। अगर आपको सहूलत है, जगह है, तो आप दूर दूर भी ठहर सकते, खुला खुला भी ठहर सकते। ये लाजिम नहीं कि एक दूसरे से चिपक कर ही ठहरना। ये शर्त है कि सब दुरुस्त होना, कदम से कदम और कांधे से कांधा मिलाना, ये ज़रूरी है। इसके लिए नमाज जनाजा 4 तकबीरात के साथ पढ़ाई जाएगी और वही पढ़ाएगा जो मस्जिद का इमाम होगा, जो जिम्मेदार होगा वही पढ़ाएगा। अगर मैयत के मरहूम के कोई करीबी लोग हैं, यानी बाप है, बेटा है, भाई है, करीबी रिश्तेदार है और वो इन मसाइल से मुकम्मल वाकिफ है, अगर वो पढ़ाना चाहता है तो वो भी पढ़ा सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इमाम जो है वही इमाम उसकी इमामत कराएगा, जैसे और नमाजों की इमामत कराता है वो भी इसकी इमामत कराएगा। इसके लिए 4 तकबीरात के साथ जनाजा शुरू की जाएगी। पहले अल्लाहु अकबर बोल के हाथ बांधा जाएगा। हाथ बांधने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह फातिहा। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं तो कुल का सूरा भी पढ़ सकते हैं या कोई दूसरा ज़मीनी सूरा, या सिर्फ सूरह फातिहा पर इत्तिफा करना चाह रहे हैं तो फिर सूरह फातिहा के बाद दूसरी तकबीर कहेंगे। पहली तकबीर में सूरह फातिहा, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दूसरी तकबीर के बाद ये दुरूद पढ़ी जाएगी। तीसरी तकबीर के बाद जनाजे की दुआ पढ़ी जाएगी। जनाजे की दुआ मुख्तलिफ जनाजे की दुआ हदीस के अंदर आई है, इनमें से आप एक दुआ, 2 दुआ, 3 दुआ अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मकसद ये है कि मरहूम के आपने दुआ करना, जैसे अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यना मय्यितना, ये भी दुआ है। अल्लाहुम्मा फ़िल वरहमहु वाफ़ी वाफ़ अन्हु वाक़िम नुज़ुरहु, ये भी दुआ है। इसके अलावा और भी दुआ है। आप जो दुआ इसमें से पढ़ना चाहते हैं आप वो दुआ पढ़ सकते हैं। कई दुआएं इस सिलसिले में आई हैं। चौथी तकबीर के बाद दाएं जानिब और बाएं जानिब सलाम फेर देंगे। एक रिवायत में मुस्नद अहमद की रिवायत में सिर्फ दाएं जानिब सलाम फेरने का जिक्र आया है, यानी एक ही सलाम के साथ। जैसे अरब ममालिक में इस पर अमल भी है और 2 तरफ सलाम फेरने की दलील है। तो पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ, तीसरी तकबीर के बाद जनाजे की दुआ, इस्तिग़फ़ार की दुआ, चौथी तकबीर का सलाम फेरा जाएगा। इस नमाज में ना अज़ान है, ना इकामत है, ना रुकू है, ना सजदा है। रफ़ुल यदैन तकबीरात के साथ जो सही तरीका है, एक मरतबा अल्लाहु अकबर पे हाथ बांध लेंगे और उसके बाद हाथ बांधे रखेंगे। अल्लाहु अकबर पर बार-बार आपको रफ़ुल यदैन करने की जरूरत नहीं है। बाज़ ने दूसरे अहादीस पर क़ियास करते हुए
میں دلائل پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے، لیکن واضح دلیل صحیح حدیث کے ساتھ موجود نہیں ملے گی. قیاس ملے گا اس میں، علماء کرام کا، صحابہ کرام کا، دوسروں کا قیاس ملے گا ہاتھ اٹھانے میں، لیکن حدیث واضح نہیں ہے کہ ہر رکعت پر ہر ضربے پر ہاتھ اٹھایا جائے. بہت سارے لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے، صرف اپنی نگاہ اوپر اٹھاتے ہیں. نماز میں نگاہ اوپر اٹھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا. اگر تم حالت نماز میں اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نظر کو وہیں سے اچک لے، یعنی تمہیں دوسرے معنوں میں اندھا بنا دے. تو حالت نماز میں نگاہ اوپر اٹھانا اور آسمان کی طرف دیکھنا یہ منع ہے. اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے اللہ کے عذاب کے طور پر وہ اندھا بھی ہو سکتا ہے، تو اسے احتیاط کرنا چاہیے اور نماز میں آنکھ بند کرنا ہے. سنا کی دلیل نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا ہی تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی ہے وہ سیدھی نماز پڑھائی ہے، خاموشی کے ساتھ، جیسے ظہر اثر پڑھتے ایسے پڑھائی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جہری پڑھائے اور جہری پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے جہری اس لیے پڑھایا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے علم کے لیے نماز پڑھائے. ابھی کچھ سوال کرتے ہیں نا؟ مرحوم کی اگر وصیت ہے کہ بھئی میرا بیٹا جو ہے نماز جنازہ پڑھائے اور جو ہے نا وہ حافظ ہو نہ عالم ہو اور جو ہے اسی مسجد میں حفاظ اور علماء بھی موجود ہو، تو کیا جو ہے مرحوم کی وصیت میں جو ہے نا اگر وہ عالم اور حافظ نہیں ہے لیکن جنازے کے مسائل سے مکمل واقف ہے تب وہ پڑھا سکتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، جنازے کی دعا بھی پڑھیں گے. اگر صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتے اور دوسری دعائیں یاد نہیں پڑھے تب بھی ان کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سورہ فاتحہ تمہاری نماز کو مکمل کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن یاد کر لینا چاہیے پہلے وہ جنازے کا طریقہ نا. بھائی جو ضعیف حضرات ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے کھاتے ہوئے سوال بنا دے رہے ہیں. دیکھیے میں بھی بتایا تھا 632 کے ہے، نماز جنازہ کے لیے سفید داغ ہونا ضروری نہیں ہے. ابن باز رحمہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کی جائے. سعودی مجلس افتاء انہوں نے اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہوئے اس دعا کو بدعت کہا ہے. یہ اب تک نہیں معلوم تھا، ہمارے پاس اجتماعی دعا ہوتی رہی. جب معلوم ہو گیا تو ہمیں اپنی بات پر اڑنا نہیں چاہیے، ڈر جانا نہیں چاہیے، مان لینا، اقرار کر لینا چاہیے. اب تک جو کرے ہم غلطی پر تھے، اب معلوم ہو گیا تو مان لینا چاہیے، رجوع ہو جانا. نماز جنازہ کے لیے سفید طواف ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفید طواف ہونا ضروری ہے. جو لوگ طواف سفید برانا مستحب گردانتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے. حضرت مالک بن حسبیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان فوت ہو اور مسلمانوں کی 3 صفیں اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں تو اس شخص نے جنت واجب کر لی. یہ ایک حدیث آئی ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. ابو داؤد کے اندر آئی ہے کتاب الجنائز کے اندر. تو اس طریقے سے ایک فضیلت اس کے اندر بتائی گئی ہے، اس حدیث میں فضیلت بتائی گئی ہے کہ اگر کسی کے جنازے میں 3 صفیں کم سے کم آ گئی، 3 صف لوگ اگر آ گئے تو اس کے لیے اس نے جنت واجب کر لی. لیکن یہ عمل کا ہونا ضروری ہے. بغیر عمل کا خالی 3 صفیں یا زیادہ لوگ نماز پڑھ لیے تو پھر وہ جنتی نہیں ہو جاتا. بڑے بڑے بدعتیوں کے میتوں میں ہزاروں لاکھوں آدمی رہتے گا، جنت کو پہنچ جائے گا، مشرک کے پیچھے بھی رہتے. اتنی بڑی صفیں، عمل ہونا ضروری ہے. وہ جو ہے سو خبر میں اتارتے وقت پڑھنے کے تعلق سے بات آئی. دیکھیے
میت کو خبر میں داخل کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مرنے والوں کو خبر میں اتارو تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کو. ایک روایت میں وعلی سنت رسول اللہ کے الفاظ ہیں. نہیں، وہ مستحب عمل ہے، چاہے تو وضو کر سکتے ہیں، صرف ہاتھ پیر دھو کے آنا نہیں ہو، ہاتھ پیر دھو کے آنا نہیں ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں تو وضو کر کے آ سکتے ہیں، وضو کرنا ہے. نہیں، جنازے میں جانے والے. شہید کو نہلانا کفنانا ضروری. کس کو؟ شہید کو نہلانا کفنانا ضروری. نہلانا نہیں، کفنانا ہے، کفنانا ہے. وہ قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھ کر آئے. میدان جنگ میں جو بھی شہید ہوتے نا ان کو ویسے ہی دفن کر دیا. ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 قدم تمہارے جانے کے بعد وہاں پر منکر نکیر آ جاتے، ان سے سوالات کرتے. تو وہاں دعا کرنا نہیں، دعا تو خبر پہ ٹھہر کر کرنا ہے، خبر پر ٹھہر کر ہی دعا کرنا ہے. ایک سے زائد بار جنازے کی نماز پڑھا سکتے ہیں. نمازی کی جناز ایک نماز ہی فرض رہے گی، بقیہ پورے جو ہے سو نفل میں آ جائیں گے. جی نماز جنازہ غائبانہ کے اتنے مضبوط دلائل نہیں ہیں. اب جو دلیل دی جاتی ہے وہ دلیل اسمہا بادشاہ جو نجاشی بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی. وہ مسلمان تھا، لیکن اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. روزانہ پیپر اٹھائیے، کئی لوگوں کا انتقال ہوتا، آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے. مشہور و معروف آدمی ہو یا مالدار ہو، بہت بڑا عالم ہو، جبھی ہم اس کی نماز جنازہ ادا کرنا پڑتے. ایک کمزور مسلمان رہتا جسمانی اعتبار سے، لیکن وہ اللہ کے پاس بہت بڑا متقی پرہیزگار بھی ہو سکتا. آپ کس کی پڑھیں؟ کمزور لوگوں کی، غریب لوگوں کی، فقیر لوگوں کی نہیں پڑھتے. آپ پڑھیں گے تو بڑے نامور لوگوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ جنازہ فرض کفایہ ہے، چند لوگوں کے پڑھنے سے کافی ہو جائے گا. پورے محلے سے ایک آدمی کی جنازے میں شریک ہو جاتا ہے، وہ محلے کا کفارہ ہے. اگر ایک بھی شریک نہیں ہوتا تب پورے گنہگار ہوں گے. اگر ایک بھی آدمی شریک ہو جاتا ہے تو کفارہ ہے. چند لوگوں کے کرنے سے مکمل ہو جانے والی فرض ہے یہ. تو پھر اس کو بار بار دعا کیجیے. آپ دعا کر سکتے ہیں، جتنی چاہے اتنی دعا کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ بالکل پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ، اور مسجد میں نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں. جب دیگر نمازوں کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں تو جنازے کے لیے بھی مسجد میں آ سکتی ہیں اور پڑھ سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبر پہ جا کے جنازے کی نماز پڑھائے. وہ ایک عورت جو مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو فجر کی نماز میں یا وقت سے پہلے اس کو تدفین کر دی. ضروری نہیں کہ نماز میں ہی لا کر وہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورج نکلتے وقت، سورج جب تمہارے سر پر آ جائے اور سورج غروب ہوتے وقت، ان تینوں وقتوں میں تمہارے لیے نماز جنازہ نہیں ہے اور مردوں کو تمہارے لیے نماز نہیں ہے اور مردوں کو دفنانا نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی وقت میں آپ میت کو لا کے دفنا سکتے، کوئی حرج نہیں. نمازوں کے اوقات میں اس لیے لاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں پر رہتے، نماز میں اکٹھا ہو سکتے، لوگوں کو سہولت رہتی، اس لیے نماز میں لایا جاتا. تو سب سردی تھی، اس عورت کو دفنا دیا گیا تھا. اللہ کے رسول نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آئی تو بولے اس کا انتقال ہو گیا. تو تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو سخت سردی تھی اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، ہم اس کو دفنا دیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی خبر بتاؤ، اللہ کے رسول اس کی خبر پر گئے اور وہاں پر آپ نے دعا کی. صلاح کا جو لفظ ہے نماز پڑھی، یہ صلاح بعض اوقات دعا کے معنی میں بھی، بعض اوقات دعا کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کے حق میں دعا فرمائی. شیخ میں مہاراشٹر پونا گیا تھا، وہاں پہ واقعہ تھا مسجد کے اندر جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا. کھلے آسمان نیچے جنازہ نمازہ پڑھا کہاں پر؟ پونا میں. جی کوئی طریقہ نہیں ہے کھلے آسمان میں، ایسی کوئی دلیل بھی نہیں. تو بھائی تھوڑا جو بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، ایسے ہی کرنا تھا. بنگلور کے آگے ماستی ایک علاقہ ہے، وہاں پر نئے مساجد اور پرانے مساجد بنے ہوئے ہیں.
पुराने मसाजिद जो हैं वो उनका दरवाज़ा भी छोटा है, एक से ज़्यादा दरवाजे हैं, पूरे पत्थरों में बने हैं मस्जिदें, वहाँ पर दरवाजे भी छोटे हैं, जनाजा लेकर सीधे तरीके से जा भी नहीं सकते, लेके भी गए तो नीचे से लेके जाना पड़ता है। एक आदमी के खत के बराबर दरवाजा है, अगर हाथ लगाए तो आसानी से दरवाजे के ऊपर की छत को हाथ लग सकता। तो वहाँ पर मैं देखा कि किसी मस्जिद में भी जनाजा नहीं ले जाता, किसी मस्जिद में भी। कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के आगे खुला मैदान बना दिया गया और वहाँ पर एक निशान लगा दिया गया कि मुसल्ले के तौर पर जनाजे पूरे उस मुकाम पर चले आते, सारे के सारे लोग वहाँ पर आ जाते। और ख़ास बात देखने में ये आई कि उस गाँव के अंदर देखा मैं कि बिला मसलब सारे लोग शरीक होते, सिर्फ मस्जिदों में ऐलान होता फलां शख्स का इंतकाल हो गया और फलां नमाज के बाद जनाजा है, सब के सब लोग वहाँ पर जमा हो जाते, वहीं पर नमाज होती और फौरन तदफीन हो जाती। काफ़ी वक्त भी नहीं लगता। ये भी एक तरीका, आसान तरीका है और ये लाजिम नहीं है कि जनाजा जैसे मस्जिद में ही अदा होना, नमाज के बाद ही अदा होना, ऐसी कोई शर्त नहीं। जैसी सहूलत है वैसा कर सकते हैं। मसला ये है मय्यत के बाद बहुत देर तक रखते तो मय्यत को गिरा भी ऐसा रखना क्या है? नहीं रखना चाहिए भैया, तो ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। अब लोगों के अपने अपने वो है, समझिए मुख्तलिफ बहाने तो सबके पास रहते बहाने। एक आदमी एक बात बोला तो चार आदमी चार तरफ से पुकारा करते मय्यत के मामले में, गुस्ल का मामला हो, मय्यत को रखने का मामला हो, कफन का मामला, इस वक्त बहुत मुफ्तियाँ पैदा हो जाते हैं। अपन सबको उस वक्त नहीं संभाल सकते, बाद वक्त इख्तिलाफात को देखते हुए कई चीज़ों में खामोशी भी अख्तियार करना पड़ता है। एख्तियार रखते हुए भी अख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसी भी हालत पेश आ जाती है। तो कुछ भी नहीं है, मट्टी हाथ से डालने का सबूत मिलता तो मट्टी उठाकर खबर में अपने हाथ से डालने का, लेकिन खुल के ढेले ये बिदात है। और क्या करते, एक आदमी टोकरे में ले लेता, पूरे उसको छीने, पूरे उसको छीता पूरे नहीं रख सकते, छीन लेते, ये भी एक बिदात है, इससे भी अपने को बचना है। अभी इसके अंदर एक मसला बताया गया, खबर इतनी बनाइए कि कोई दरिंदे या जंगली जानवर उसको खोदकर मय्यत को ना निकाल सके, समझे? हाँ, अब इधर भी अपने पास की मट्टी वजन होती, अगर रेती वगैरह है तो कुत्ते वगैरह बड़ी आसानी से खोद सकते। ऐसा काम करना कि दरिंदे वगैरह जो है उसको खोदकर या कुत्ते दूसरे जानवर वगैरह खोदकर ना निकाल सकते हो, इतना जो है करना चाहिए जी। हाँ बस इंशाअल्लाह ताला अभी अपना जो दर्स चल रहा है का, इसमें आगे चल के फिर इंशाअल्लाह ताला ये दर्स आएगा। हाँ, खबरस्तान में नमाज नहीं पढ़ सकते, कौन सी नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता जनाजे के अंदर रुकू और सजदा नहीं है, अगर ये जनाजा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। एक बात हो गई कि पूरे लोग एक जगह जमा हो गए, बिद्दत के तो अपनी जमात के लोग भी आके नमाज पढ़ो, ऐसा है मालूम क्या? ऐलान होता फलां का इंतकाल हो गया है, फलां जगह पर नमाज होगी, पूरे के पूरे चले आते, जमात भी जाती हो, पूरे चले आते कोई भी। और कैसा खास बात क्या है, मैं जब गया था उस वक्त तो अहले बच्चे का पता नहीं, ऐलान हुआ था मस्जिद में, एक नौजवान बच्चे का सड़क हादसे में इंतकाल हो गया, असर के बाद वहाँ पर जाना है। तो हम लोग जमात का फर्क क्यों? बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी जमात है माशाल्लाह। और वो लोग जो काम कर रहे हैं वेलफेयर दवा पर, वो तारीखी काम कर रहे हैं, अच्छा काम भी चल रहा होता है, तो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं।